Good afternoon, students. Today's topic is physical policy, Rajkoshiya Niti. In this lecture, I will focus on what is physical policy, what is their object, structure of the physical policy in India. I will cover the three particular points. What is monetary, what is physical policy, what is the object, and what is the structure of physical policy in India. So let me start. The first question is, what is the physical policy? A policy which relevant to public finance. एक ऐसी नीति जिसका संबंध लोक वित्त से हो, राजस्व से हो. अंडर द पब्लिक फाइनेंस, public expenditure, public revenue and public debt are included. फिजिकल पॉलिसी में, राजकोषीय नीति में हम राजस्व की बात करते हैं या लोक वित्त की बात करते हैं. लोक वित्त में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अंडर द पब्लिक फाइनेंस, द थ्री पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स which covered. One is the public expenditure, another is the public revenue, and third is the public debt. Public expenditure, which is made by the government of India on the public for the welfare of the public, for making for creating the employment opportunities, for infrastructure development, just like banking sectors, road construction, market, transportation, etc., etc. Under the public revenue, imposition of the taxes. The source for getting the revenue, government impose the taxes, direct taxes, indirect taxes. And the third is very important, public debt. Public debt means lok ऋण. Government, as per the requirement, Government of India, to meet out the amount of deficit, recover from taking the loans from public. The public debt in public debt is public debt has two types: internal loans and the external loans. Under the physical policy, Government of India adjust their expenditure as per the revenue. Or in other words, under physical policy, government expenditure and government revenue adjusted in this manner so that balance should maintain between demand and supply of goods and services. इसका अर्थ यही हुआ कि सरकार आय और व्यय को, सरकारी आय और सरकारी व्यय को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है, इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जाता है कि मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाया जा सके. इट इज़ वेरी सिंपल टू मेंटेन द बैलेंस between the supply and the demand of goods and services. Government of India adjust their expenditure and their revenue. By the physical policy, the object of full employment and economic stability can be achieved. सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने के लिए आय और व्यय को समायोजित करती है. इस प्रकार करती है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और उनकी पूर्ति में एक संतुलन बना रहे.
कुल मिला के ओवरऑल डिमांड ज़्यादा लेकिन सप्लाई ना हो पाए, या सप्लाई के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा और डिमांड ना हो पाए, तो गवर्नमेंट इस पॉइंट को या इस गैप को मेंटेन करने के लिए फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय द फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति की सहायता से आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ टुडेज लेक्चर we can understand about the term of the fiscal policy, a policy which is relevant to the public finance. Under the public finance, three particular area included. One is the public expenditure, second is the public revenue, and third is the public debt. Then another thing is by the fiscal policy, government expenditure and revenue adjusted in this manner, demand and supply of goods and services can be balanced. Then by the fiscal policy, government fulfills the object of economic stability and the full employment. In the next segment, we will discuss on the content objective of the fiscal policy. The first objective of the fiscal policy is to meet out the objective of economic development. सरकार आर्थिक विकास के उद्देश्य को पाने के लिए राजकोषीय नीति अपनाती है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हमारी इनकम भी बढ़ती रहे, हमारी नेशनल इनकम भी ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक इन द सेंस साउंड रहे, साउंड कंडीशन में रहे, पर कैपिटा इनकम भी बढ़िया रहे, हम इंडस्ट्रियल मैनर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा टूरिज़्म सेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मार्केट के लिए जो हमारी मार्केटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वो पूरी तरह प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल पॉलिसी, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। देन सेकेंड इज to boost up the speed of capital formation and collect investment sources. कैपिटल फॉर्मेशन की जो स्पीड है उसको बूस्ट अप करना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब सीधा सा है अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू providing employment opportunities in society. The condition of employment may increase the living status, the income level of the person. Then he save some money and invest in some field or in some areas. Then another thing is collect investment sources. पूंजी निर्माण को गति प्रदान करना और विनियोग के वो साधन या वो स्रोत खोजना जहां पर विनियोग किया जा सके। The third is the making stability by avoiding high economic fluctuations. High economic fluctuation, inflation, deflation या पर्टिकुलर वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशंस जिससे फाइट करने में इकोनॉमिकली
सरकार कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट करती है, उससे हमारी इकोनॉमी वीक होती है। तो हाई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। तो फोर्थ इज द रीएलोकेशन ऑफ इनकम एंड रिड्यूसिंग द इनकम डिस्पैरिटीज। समाज में जो आय की विषमता है, कुछ वर्ग ऐसा है जिनके पास आय के साधन पर्याप्त हैं, कुछ वर्ग ऐसा है जिनके पास आय के साधन कम हैं। इसके साथ साथ में एक और भी जो चीज़ होती है इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट में, वो ये होती है कि जो रिच क्लास है वो रिच ही होता जाता है और जो पुअर क्लास है उसके में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तो रीएलोकेशन ऑफ इनकम मतलब आय, जो इनकम है आय को का पुनर्वितरण करना, मतलब इनकम को इस तरह से इन्वेस्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके, एंड रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटीज़, जिसके कारण यदि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो जो आय में एक असमानता है, एक जो विषमता है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अनदर इज द ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। ये रोजगार के अवसरों का विस्तार कैसे होगा? बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी व्ययों के द्वारा। So these are the objective of the physical policy. Now we will start with the structure of physical policy in India. So what is the structure of physical policy in India? भारत में यदि हम इस नीति की संरचना के बारे में बात करें तो क्या स्थिति है फिजिकल पॉलिसी को, की जो संरचना है वो भारत में किस प्रकार की है, या आप कह सकते हैं कि भारत में फिजिकल पॉलिसी को, इस राजकोषीय नीति को अपनाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। द फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, Government of India adopt physical policy for increasing the national income and increasing the rate of capital formation by public expenditure and by the collection of revenue. The second is the collection of sufficient resources for investment. इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर विनियोग किया जा सके। द थर्ड इज द रिमूविंग इनकम डिस्पैरिटीज बाय रीएलोकेशन ऑफ द इनकम। आय के, या इसको कहा जाए कि सरकारी आय को इस प्रकार से विनियोजित करना कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। इट मीन्स द रीएलोकेशन ऑफ द रेवेन्यू सोर्सेस in the profitable, in the beneficial field, so that youth can get more employment opportunities and make saving, make investment. The another is the economic stability, आर्थिक स्थायित्व। आर्थिक स्थायित्व को मैं बार बार कहना चाह रही हूँ यहाँ कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या मूल्यों में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो उच्चावचन की स्थिति होती है, मूल्यों का अधिक हो जाना या मुद्रा का बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा होना, इन्फ्लेशन, मुद्रा की कीमत का कम हो जाना, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ मनी,
तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इससे इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी आती है. सो टू मीट आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopt physical policy. The last is the generation of the employment opportunities among the society or among the peoples. सरकार फिजिकल पॉलिसी के थ्रू सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है. कैसे? थ्रू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, through improve in the infrastructural facilities. By these investment, the peoples can get employment opportunities. So students, in this lecture I have focused on physical policy, what is their objects, and what is the structure of the physical policy in India. I hope you will take the all benefits from this lecture. You can get knowledge from this lecture. Thank you.